بدھ مت کی کون سی چیز ایسی تھی جو آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی؟ آپ کے مسلمان ہونے پر آپ کے خاندان اور دوستوں کا رد عمل کیسا تھا؟ جاپان میں آپ کو اپنے مذہب پر عمل کرنے میں سب سے بڑی مشکل کیا پیش آتی ہے؟ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے تم ابھی تک مسلمان کیوں ہو؟ اسلام چھوڑ دو۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر بالآخر وہ کہنے لگے تم اب سے میرے بیٹے نہیں ہو۔ احمد معینو کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام احمد معینو ہے۔ میرا پیدائشی نام ناؤکی ہے۔ میں جاپان سے ہوں۔ بنیادی طور پر میرا تعلق آئیچی سے ہے جو جاپان کے وسط میں ہے، اور آج کل ٹوکیو کے قریب چیبا میں رہتا ہوں اور ٹوکیو میں کام کرتا ہوں، اور میں جاپان مسلم ایسوسی ایشن کے 4 اماموں میں سے ایک ہوں۔ میرا نفس، میری انا، میری ذات تقریباً 13 سے 14 سال کی عمر میں بیدار ہوئی، اور میں خود سے سوال کرنے لگا میں کہاں سے آیا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور چونکہ میں جاپان میں پلا بڑھا تھا، قریب ترین مذہب جس کا ماحول میں نے پایا وہ بدھ مت تھا، تو میں نے سوچا کہ اگر میں بدھ مت مذہب اختیار کر لوں، خاص طور پر خالص بدھ مت طریقہ، تو میں اپنے سوالات کے جواب حاصل کر سکوں گا۔ ایک مرحلے پر تو میں نے مذہب کے ذریعے سچائی ڈھونڈنے سے ہار مان لی، لیکن پھر مجھے میلبورن آسٹریلیا جانے کا موقع ملا بطور ایکسچینج طالب علم تقریباً 1 سال کے لیے۔ پھر الحمدللہ وہاں قیام کے دوران میں ایک مصری خاندان سے ملا۔ وہ میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئے، چنانچہ ان کے ساتھ رہن سہن کے ذریعے ان کو جان کر اسلام کے خلاف میرا معتصبانہ نظریہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے آپ حقیقتاً اسلام کے بارے میں مطمئن ہوئے؟ اسلام کی طرف آنے کے بعد کہ یہ وہی مذہب ہے جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش تھی۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں خوف و اضطراب میں تھا، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ایک تھا جو اسلام کو معتصبانہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو میں جانتا تھا کہ اگر میں نے آخری قدم اٹھایا، یعنی مسلمان بننے اور اسلام اور مسلمانوں کی سرحد تک پہنچنے اور اس میں داخل ہونے پر، مجھے میری سوسائٹی جاپانی سوسائٹی میں کس نظر سے دیکھا جائے گا، مجھے بہت زیادہ عجیب و غریب آدمی سمجھا جائے گا۔ یہ آخری وجہ تھی جس نے مجھے آخری مرحلے تک آنے سے روکا ہوا تھا۔ لیکن پھر میلکوم ایکس کی فلم دیکھنے سے مجھے آخری قدم کی ہمت ملی اور میری حوصلہ افزائی ہوئی، الحمدللہ، کیونکہ میلکوم ایکس نے اپنی پچھلی زندگی ایک بدماش کے طور پر ہر قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہوئے گزاری۔ پھر یہ دیکھنا کہ کس خوبصورتی سے اور کس قدر اس نے اپنی زندگی کو ایک مذہبی پیشوا جیسی زندگی میں بدل دیا، بہت سیدھے سادے انسان کی طرح۔ اور مزید یہ کہ حج کے مناظر دیکھنے سے جب وہ حج کے لیے مکہ گیا، جس سے وہ خود حیرت زدہ رہ گیا۔ کئی جگہوں پر بہت سے لوگ جمع ہوتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ وہ فٹ بال کا میچ دیکھیں یا رقص یا موسیقی کی محفلیں، تفریح حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں، اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں ایک خدا کی عبادت کی خاطر۔ کیا اس تعریف سے بڑھ کر کوئی تعریف ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر آخرکار مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ڈرپوک انسان بننا پڑے گا۔ نہیں، مسلمان ہونا بہت خوبصورت تجربہ ہے، بہت عمدہ، خوبصورت اور زبردست۔ چنانچہ الحمدللہ میں نے آخری قدم اٹھایا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو میلکوم ایکس کی فلم جس دن دیکھی، اسی رات میرا خیال ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب میں نے اسلام قبول کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اپنے گھٹنے زمین پر ٹیک دیے اور پھر اپنی پیشانی فرش پر رکھ کر اللہ سے دعا مانگی۔ آپ کے خاندان اور دوستوں کا آپ کے مسلمان ہونے پر کیا رد عمل تھا؟ ہاں، وہ غلط سمجھتے تھے۔ میں نے اپنے والدین کو اپنے اسلام قبول کرنے کی کہانی الف سے یہ تک سنائی، لیکن انہوں نے غلط سمجھا، اسی لیے شروع میں کوئی ایسی پرابلم نہیں تھی۔ لیکن پھر جب جاپان میں سماجی حادثے پیش آئے، ظاہر ہے کہ یہ اوم نامی ایک جنونی ہجوم کی وجہ سے تھا، وہ لوگ جنہوں نے ٹوکیو کی سب وے ٹرینوں کے اندر قاتلانہ زہر پھینکی، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے عقیدہ رکھنے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے کے خلاف ایک بہت ہی منفی تصویر پیش کی۔ پھر جہالت کا معاملہ اور مسئلہ سامنے آتا ہے، یا اسلام کو نہیں جاننے کا۔ انہوں نے سمجھا کہ اسلام ایسا ہی ہوگا، ایسے جنونی لوگوں سے ملتا جلتا۔ جب میں اپنے والد سے کویت میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت لینا چاہتا تھا عربی زبان سیکھنے کی خاطر، میں پہلے ہی اوساکا میں عربی زبان کی تعلیم دینے والی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لے چکا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں۔ پھر وہ مجھ سے پوچھنے لگے تم ابھی تک مسلمان کیوں ہو؟ اسلام چھوڑ دو۔ میں نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ابا جان دیکھیں، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، کیا میں پاگل ہو گیا ہوں؟ کیا میں پہلے سے برا ہو گیا ہوں؟ اندر سے وہ جانتے تھے کہ ایسا نہیں ہے، ان کا بیٹا پہلے سے برا نہیں ہوا۔ پھر آخرکار کہنے لگے کہ چلو تم اب سے میرے بیٹے نہیں رہے،
तो ये बहुत हैरान कुन बात थी। और फिर चूंकि मैं अभी भी पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह अपने वालिदैन की कफालत में था, इसलिए मुझे अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कोई और रास्ता तलाश करना पड़ा। फिर अगले दिन मैं कूबा शहर की मस्जिद में गया और अपने मसले के बारे में मिस्री इमाम से मशवरा किया, तो उन्होंने मुझे मिस्री सफारत खाने के नाम अजहर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए सिफारशी खत दिया। चनाचे मैंने वो खत मिस्री सफारत खाने को भेज दिया। फिर अपने वालिदैन के पास वापस गया और अपने वालिदैन के साथ बिल्कुल पुरसकून माहौल में बैठा। और फिर मैंने देखा कि मेरे वालिदैन मुझे दोबारा कबूल कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या उनमें से किसी ने आपके बाद इस्लाम कबूल किया? अस्सलामुअलैकुम भाई और बहनों, हमने देखा है कि हमारे 80% नाजरीन बाशुमूल इस वीडियो के ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है और हमने अपनी वीडियोस पर एड्स बंद रखी हैं। लिहाजा हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं ताकि सच्चाई को फैलाया जाए। ये एक छोटा सा अमल लग सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ये बहुत से लोगों के लिए रहनुमाई का जरिया होगा। आइए अब सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और एक साथ चलें अब्दियत की तरफ। बदकिस्मती से नहीं, मेरे वालिद जो इंतकाल कर गए, अगरचे मरने से पहले जो खत उन्होंने लिखा उसमें उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहने लगूं, मैं किसी हद तक इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो सकता हूँ, लेकिन मेरे खानदानी हालात ने इसकी इजाजत नहीं दी। बुद्ध मत में कौन सी चीज ऐसी थी जो आपको समझ नहीं आती थी? आपको बुद्ध मत में क्या नहीं मिल सका? उनमें से एक चीज दूसरे जन्म का नजरिया है। दूसरा जन्म हिंदुस्तान से शुरू होने वाले अकायद में से है, और जैसा कि आप जानते हैं बुद्ध मत हिंदू मत का ही जानशीन था। यहाँ तक कि खुद बुद्धा को हिंदू मत का इनकलाबी समझा जाता था। दूसरा जन्म ये मानना है कि आप में जान है, आप में रूह है, और ये रूह कभी मरती नहीं है और इस दुनिया में मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद रहती है। आपके अमाल और आप क्या करते हैं, इसी की बुनियाद पर। तो पिछली जिंदगी में हो सकता है कि आप जानवर, कीड़े या कुछ और हों, और फिर उनके मुताबिक इस जिंदगी के बाद हो सकता है कि आप कोई और मखलूक बन जाएं। मुमकिन है आप इंसान हो या कोई दूसरी मखलूक हो। इस जिंदगी के बाद जब तक कि आप निर्वाण तक ना पहुंच जाएं, जब तक कि आप पूरी कायनात को सही तौर पर समझ ना लें और फिर दूसरे जन्म के चक्कर से बाहर ना निकल आएं, आप इसी तरह जारी रखें। यह है दूसरे जन्म का नजरिया। तो सवाल पैदा होता है कि फिर मुख्तलिफ जमानों में लोगों की तादाद तो मुख्तलिफ रहती है, तो अगर आप कहते हैं कि रूह की शक्ल में तुम जिंदा रहते हो, फिर दोबारा जन्म लेते हो और बार बार जन्म लेते रहते हो, तो आप इनको बराबर कैसे कर सकते हैं? और सबसे बड़ी वजह जिसने मुझे एक राहिब बनने से रोक लिया, वो मुकम्मल तौर पर मजहबी और रोजमर्रा की जिंदगी को अलग कर देना था। हाँ, वो मुकम्मल तौर पर मजहबी जिंदगी और रोजमर्रा की जिंदगी को अलग अलग करार देते हैं, तो वहाँ आपको तजादात नजर आते हैं। अगर कोई जापान में इस्लाम तलाश करना चाहे और गूगल में इस्लाम के बारे में कुछ सवालात लिखे, तो उसे क्या जवाब मिलेगा? खैर, बहुत से हो सकते हैं, इस बुनियाद पे कि वो इस्लाम को जानने में कितनी गहरी दिलचस्पी रखता या रखती हैं। लेकिन बहुत बदकिस्मती से कुछ किताबें मौजूद हैं जो किसी मुस्तशरिक की लिखी हुई हैं, जिसका मकसद जापानी लोगों में इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाना है। वो किताबें बदकिस्मती से आजकल की एक बेहतरीन सीरीज के तौर पर दस्तयाब हैं, लिहाजा मुमकिन है कि ये वो पहला मवाद हो जो उन्हें मिल सके। जापान में आपको अपने मजहब पर अमल करने और बतौर मुसलमान जिंदगी गुजारने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं? फिलहाल मैं कहूँगा ताउन करने वालों की कमी। मसलन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास मेरा मतलब है कि मुझ समेत मेरा खानदान 7 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे खानदान और रिश्तेदारों के दरमियान वाहिद मुसलमान हम हैं। ऐसा ही मेरी बीवी का मामला है, तो हमारे खानदान नहीं है। खानदानों के हाथ जो ख्याल रखें बिरादरी का। हाँ, यहाँ तक कि वो कम्युनिटी जहाँ मैं रिहाइश पजीर हूँ, चीबा के क्योटो नामी जगह में, जहाँ निस्बतन ज्यादा मुसलमान रहते हैं, लेकिन मेरे देखने में मुसलमान नमाज के औकात में जमा होते हैं, लेकिन अपनी निजी जिंदगी के लिए मुझे उनमें कोई राब्ता नजर नहीं आता। जानते हैं, आप रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरे मुसलमानों के साथ ज्यादा मेल जोल नहीं करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी अच्छी सिफत थी जिसने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया? उनकी रहमत, खास तौर पर उस वक्त जब वो ताइफ से वापस आ रहे थे। ताइफ के लोगों को दावत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन पर पत्थर फेंके जा रहे थे, और इस अमल के खिलाफ जब उन्हें फरिश्ते की तरफ से ये पेशकश की गई कि उनको कुचल दिया जाए, तो उन्होंने क्या कहा? सुभान अल्लाह, बराए मेहरबानी ऐसा मत करना, शायद उनके बाद ऐसी नस्लें आए जो एक खुदा पर ईमान लाने वाले हों। सुभान अल्लाह। आपने इमाम बनने का इंतखाब क्यों किया? क्योंकि कोई दूसरा नहीं कर रहा। सुभान अल्लाह। मुसलमान होने के बावजूद बहुत कम ठहरते हैं। बहुत से लोग हैं जो कलमा शहादत का तलफ़्फ़ुज़ कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह जानता है
अल्लाह ही जानता है वो इसके बाद कलमा शहादत के बाद कैसे बन जाते हैं, क्योंकि कोई बाकायदा निज़ाम नहीं है जो गिरने के बाद उनकी देखभाल करे। जानते हैं कोई भी नहीं। और वो खास तौर पर वो लोग जो जापान के बाहर से आते हैं, वो लोग जो दावती सरगर्मियों में पुरजोश हैं, वो लोगों को दावत देते हैं और फिर जब वो देखते हैं कि लोगों ने कलमा शहादत पढ़ लिया तो वो दूसरे अहदाफ के पीछे चले जाते हैं, नए लोगों की परवाह किए बगैर। मुसलमान होने के बाद जब मैं भी बहुत छोटा था, मेरे सीनियर्स में इस्लामी अलूम के फारिगुल तहसील अफराद की तादाद बहुत कम थी। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मैं इन सरगर्मियों से दूरी महसूस करता था। आप जानते हैं कि मैं टोक्यो में नहीं रह रहा था, इनमें से बहुत से टोक्यो में थे और इनकी बहुत कम सरगर्मियां मुझ तक पहुंची, मुझ जैसे लोगों तक पहुंची। तो मैंने खुद से सवाल किया, हालांकि उन्होंने इल्म हासिल किया और उन्हें ये मौका मिला कि वो अल्लाह का दीन सिखाएं, मुझ जैसे लोगों को जो उस वक्त नौजवान थे, वो जरूरत के मुताबिक काम नहीं कर रहे। जानते हैं वो नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर है बाद में मैं समझ गया कि हर एक की अपनी जिंदगी है और वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी के मामलात में बहुत मसरूफ हैं, लेकिन उस वक्त वो अच्छा काम नहीं कर रहे और बहरहाल वो अपनी पूरी कोशिश नहीं कर रहे। फिर अगर करने वाला कोई नहीं है तो मुझे ये करना पड़ेगा। आपके ख्याल में लोगों के इस्लाम पर इस कदर शिद्दत और सख्ती से तनकीद करने की क्या वजह है? यहाँ तक कि जापान में भी इसके नताइज नजर आते हैं। मेरे ख्याल में इसकी एक वजह यह है कि वो जानते हैं, वो समझते हैं कि इस्लाम सच्चा दीन है और क्योंकि वो अपने अंदर फौरन समझ आते हैं इस्लाम को सच जानने और पहचानने के बाद, वो जानते हैं कि उन्हें इसे कबूल करना होगा। लेकिन अगर वो इसे कबूल कर लें तो ये उनको बोझ लगेगा, तो वो नफरत के साथ इसके खिलाफ काम करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं इस्लाम की हदायत और तालीम के बगैर हमारा नफ्स हमारे खिलाफ बहुत मोटा, बड़ा और ताकतवर बन जाता है। क्या आप मजीद कुछ कहना चाहेंगे? जरूर। तमाम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए दुआ करना ना भूलें, और ख़ास तौर पर मेरी वालिदा और मेरी बीवी की वालिदा के इस्लाम की, और मेरे रिश्तेदार भाइयों के लिए और सबके लिए। आप जानते हैं हमारे जैसे हालात वाले लोग, मुझ जैसे बहुत से इस्लाम कबूल करने वाले लोगों के वालिदैन अभी भी मुसलमान नहीं हैं, तो हमारे लिए दुआ करें। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।